ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ارے نبی کا رتبہ کب جاہلوں کے سمجھ میں آئے گا؟ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ نبی کا رتبہ کب جاہلوں کے سمجھ میں آئے گا؟ ارے میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور نبی کو چھوڑ کے جو کہتے ہیں خدا مل جائے گا، نبی کو چھوڑ کے جو کہتا ہے خدا مل جائے گا، ارے قبر میں اتنے ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ آئیے زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس بدر ملت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائیہ وآخر الابدان وشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ۔ حضرات، میں تو کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، ہمارے سامنے بھی حضرت علامہ و مولانا مفتی حکیم صاحب قبلہ یہاں موجود ہے، اور ایک میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب یہ بریلی شریف میں پڑھتے تھے میں رامپور میں پڑھا کرتا، اور یہ حضرت بھی تھے وہاں، ہم بھی جایا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی امام ظفر صاحب اور حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب، یہ سب ایک ہی پلیٹ فارم کے۔ تو حضرات، میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں کاشتکار انسان اسی لائق نہیں تھا کہ میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ بول دوں، لیکن آج جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں یا یہاں آ کر بیٹھا ہوں، یہ حضور میرے استاد العلماء و فقہا پیر طریقت رہبر شریعت حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت الرضوان ہی کا، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کر۔ تو آؤ دیکھو، شاعر فرماتے ہیں، قرآن گھر گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی خدا کا خوف ہم کرتے نہیں، ذرا بھی خدا کا خوف ہم کرتے نہیں، اور زلزلے کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فقط، زلزلہ کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فقط، پر سن کر اذان کبھی ہم اڑتے نہیں، پر سن کر اذان کبھی ہم اڑتے نہیں، اور آتی ہے مصیبت تو ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ توجہ سے حضرات، آتی ہے مصیبت تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، ورنہ سر تو کبھی سجدے میں ہم رکھتے ہیں۔ آتی ہے مصیبت تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، ورنہ سر تو سجدے میں کبھی ہم رکھتے ہیں۔ اور کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، ارے بند تو ٹی وی کبھی ہم کرتے نہیں، بند تو ٹی وی کبھی ہم کرتے نہیں، وہاں لگتے۔ تو حضرات، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے، اطمینان کی زندگی مل جائے، ہر انسان آرام سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن سکون، اطمینان، آرام ہے کہاں؟ اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے، یہ سکون ہے کہاں، اطمینان ہے کہاں؟
اے پاک پروردگار ذرا تو ہی بتا دے کہ سکون ہے کہاں؟ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں، حضرت شیش کا ذکر قرآن میں، حضرت نوح کا پروردگار تمام انبیاء کرام کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن سکون ہے کہاں؟ کوئی کہتا ہے کہ دولت میں سکون ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد میں سکون ہے، کوئی کہتا ہے کہ کرسی میں سکون ہے نا بھائی؟ یہی کہتا ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ اگر مجھے دولت مل جائے تو شاید میری زندگی سکون سے گزر جائے۔ کوئی یہ سوچتا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو مجھے سکون مل جائے، سکون کی زندگی میں گزار لوں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے تو شاید کہ میری زندگی سکون سے گزر جائے۔ لیکن اے میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، سنی جنتی مسلمان بھائیوں، میں نے ایک دولت مند سے پوچھا، اے دولت مند، اب تو تیرے پاس دولت ہے، اب تو کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہے، ذرا یہ تو بتا کیا سکون کی زندگی گزر رہا ہے؟ تو وہ دولت مند عرض کرتا ہے، کیا بتاؤں، جب تک دولت نہیں تھی تو دولت کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، رات و دن ایک جگہ جمع کر کے محنت کر کے آج تو میں کروڑ پتی بن گیا، لیکن جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتا مجھے نیند نہیں آتی، جب تک میں نیند کی گولی نہیں کھا لیتا تو مجھے نیند نہیں آتی۔ پتا چلا، معلوم ہوا کہ دولت میں بھی سکون نہیں ہے۔ اب میں نے پوچھا، اے بندے، آج کسی کو اپنے اولاد پر اکڑ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس 5 بیٹے ہیں، 5 ڈنڈا، میرے پاس 5 بیٹے ہیں، 5 لاٹھی ہے۔ اب وہ غریب، فقیر، مسکین، یتیموں کو نہیں سمجھتا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، نہیں سمجھتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں نے اس انسان سے پوچھا کہ اے صاحب ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب تو تمہارے پاس اولاد ہے، جس دن اولاد نہیں تھا مزارات پر چکر لگا کے پھرتا تھا کہ اے اللہ کی ولی مجھے اولاد دے دے، اے اللہ کی ولی مجھے اولاد دے دے، لیکن اب تو اولاد ہو گیا تو کیا تمہیں سکون ہے؟ کیا اب سکون کی زندگی گزار رہے ہو؟ تو وہ شخص عرض کرتے ہیں، کیا بتاؤں، جب تک کوئی اولاد نہیں تھے مزارات پر چکر لگایا کرتا تھا، آج اولاد ہو گئے تو کوئی پوچھتا نہیں، پوچھتا ہے بھائی؟ جو ہی شادی ہو گئی، شادی سے پہلے تو پوچھتا، شادی کے بعد کون ماں باپ کو پوچھتا ہے؟ کیا بتاؤں، جب تک اولاد میرے ذمے میں میرے پاس نہیں تھے تو میں مزارات پر چکر لگا کرتا تھا، رات دن ایک جگہ جمع کر دیا، لیکن آج اولاد ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، چلنے کے لائق نہیں، مگر کوئی پوچھتا ہے۔ پتا چلا کہ اولاد میں بھی سکون نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، اے پردھان منتری ذرا یہ تو بتا کہ تیرے پاس تو کرسی ہے، پورے دیش کو چلاتا ہے، تو سکون کی زندگی گزر رہا ہوگا۔ جب میں نے پردھان منتری سے پوچھا تو وہ بھی کہنے لگے، کیا بتاؤں، جب تک کرسی نہیں ملی تھی رات دن محنت کر کے، آج تو کرسی مل گئی ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں کہ کیا پتا کب یہ کرسی مجھ سے چلی جائے، کیا پتا کہ کب یہ کرسی میرے پاس سے چلی جائے، پھر میں کیا کروں گا؟ تو پتا چلا کہ کرسی میں بھی نہ دولت میں سکون، نہ اولاد میں سکون، نہ کرسی میں سکون۔ اے پاک پروردگار ذرا تو ہی بتا دے کہ سکون کہاں ہے؟ تو اے میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو پتا چل گیا کہ سکون قرآن میں ہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ایک ایسی پاک پوتر کتاب ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ کیا بتائے، 1 حرف پڑھیں تو 10 نہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، چوک چوراہے پر بیٹھ کر ہم وقت گزار دیں گے، قرآن کھولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اچھا، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دولت ہو، چاہتا ہے نا، ہر انسان کی خواہش ہے کہ دولت ہو تو ایسی روم ہو، تاج محل بنواؤں، آرام سے زندگی گزاروں، لیکن دولت ملے گی کیسے؟ ایک پیارا واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد بتاؤں گا کہ حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد، ان کی ایک کرامت بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں رکھتے ہیں، اور حضور مفتی بدر الدین علی رحمت و رضوان یہاں حاضر ہے، یہاں حاضر، ابھی بتاؤں گا۔ دولت اگر کمانا چاہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں تو سنو، ایک باپ کا 3 اولاد تھا، مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں، ایک باپ کا 3 اولاد، تو سب سے چھوٹا بیٹے نے کیا کہا
कि देखो अब्बा जान बूढ़े हो गए हैं, एक काम करते हैं, जो हमारे बाप को खिलाएगा, देखभाल करेगा, बाप के तरका में से उसको कुछ नहीं मिलेगा। मामला हो गया ना? हाँ, बाप की तरफ से उसको दौलत नहीं मिलेगी, जो खिलाएगा। कैसा लगा ये? अजीब सा लग रहा है ना कि जो खिलाएगा उसी को बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। दौलत विरासत में से कुछ नहीं मिलेगी उसको, दौलत ही नहीं, जो खिलाएगा उसी को नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई। तो बड़े भाई ने कहा ये तो अच्छी बात है, ये बूढ़ा है, यही टॉयलेट करेगा, पेशाब पैखाना कौन साफ करेगा, इस झमेले से तो हम बच गए। और ऊपर से जो इसको खिलाएगा, देखभाल करेगा, उसी को दौलत नहीं मिलेगा। तो अजीब सी बात है ना। चलो भाई, अच्छी बात है भाई, हमारे छोटे भाई तुम बहुत अच्छा फैसला किया, हम इस पर मुतमईन हैं, हमें आराम मिल गया, हमें सुकून मिल गया। अब वो दोनों बड़े भाई जो थे बड़े चालू थे, अरे हम तो दौलत के मालिक हो जाएंगे और बाप के तरका में से जो भी मिलेगा हम ही दोनों बांट लेंगे और इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, तो पेशाब पैखाना साफ करते करते इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब छोटा बेटा बाप के साथ बहुत हमदर्दी, बहुत प्यार करते हैं, डॉक्टर, पेशाब पैखाना जहां जाने की जरूरत पड़ती है छोटा बेटा लेकर के जाते हैं। और ये दोनों भाई पूछते भी नहीं, बड़े दोनों भाई पूछते भी नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसके बाप इंतकाल कर गए। अब ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों भाई अभी लाश है, अभी मैयत को दफन नहीं कराए। पहले जमीन जायदाद तकसीम करने के लिए दोनों आपस में झगड़ा करने के लिए चल पड़े, आपस में दौलत के बंटवारा में लग गए। अब ये अफसोस में हजरात मोहतरम कुरान पाक जो कुछ हुआ पढ़ा, पढ़ने के बाद दफन और कफन हुआ, जनाजा हुआ। उसके बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिर गिरा कर दुआएं मांगने लगे, पाक परवरदिगार मेरे वालिद मोहतरम के सगाए कबाए गुनाहों को माफ अता फरमा कर मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता। उसके कुछ दिनों के बाद अब इसके पास तो कुछ है नहीं, सारी दौलत ले लिए, सिवाय घर के कुछ नहीं है। क्या करेगा बेचारा, परेशान है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला पर भरोसा रखो मुसलमानों। अब वो शख्स एक दिन सो गए, एक अल्लाह के वली उसके ख्वाब में आकर अर्ज करने लगे, ए बंदे, फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़े हुए, जाओ उठा लो। अब उस नौजवान ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत है? उसमें बरकत है? तो उस बुजुर्ग ने अर्ज किया, ना बरकत तो नहीं है। अब उसने अपनी बीवी से अर्ज की, क्या करूं, जाऊं, ऐसी बात है। तो बीवी ने कहा, घर में तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, काम करो ना, चले जाओ। कहा नहीं, उसमें बरकत नहीं है, मुझे नहीं जाना है। फिर दूसरे दिन ख्वाब में आ गए, फिर वही शख्स अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के वली जरा ये तो बता, तो उसमें बरकत है। उस दिन कितने? 10 दिरहम। कह रहे जाओ फला शजर के नीचे, फला दरख्त के नीचे 10 दिरहम है, उसको उठा करके लेके आ जाओ। तो उस शख्स ने अर्ज किया, क्या उसमें बरकत? का नहीं है। कहा फिर मुझे नहीं जानना। फिर तीसरे दिन ख्वाब में वो बुजुर्ग आ गए, फिर वो शख्स अर्ज करते हैं, हुजूर अब बताओ कितने दिरहम है? वो अल्लाह के वली अर्ज करते हैं कि 1 दिरहम है। वो शख्स अर्ज करते हैं, क्या उसमें बरकत है? अर्ज करते हैं, हाँ उसमें बरकत है। वो शख्स फौरन घर से उठकर उस शजर के नीचे उस दरख्त के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वाकई उसमें 1 दिरहम। अब वो दिरहम वो लेकर आ रहे थे, वो दिरहम लेकर घर आ रहे थे। रास्ते में उसको मछली मिल गई, तो 1 दिरहम की 2 मछली उसने खरीद ली। अब देखो अल्लाह की कुदरत, मुकद्दर में अगर दौलत है तो किसी ना किसी बहाने से वो दौलत मिलेगी। आप चोरी का रास्ता इख्तियार करो या नमाज पढ़, या नमाज पढ़ करके आप वो दौलत कमाना चाहो, वो दौलत मिलेगी जो मुकद्दर मिलेगी। वरना अगर दौलत नहीं है, रात दिन एक कर दो, आपकी बकरी मर जाएगी तो गाय मर जाएगी। मैंने एक बहाना, इधर से 10,000 रुपये जमा हुआ कि ये काम करूंगा, एक आपकी गाय मर जाएगी। तो सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई, उस शख्स ने 2 मछली ले ली, घर आए, अपनी बीवी को साफ करने के लिए दिए, तो अल्लाह की कुदरत देखो, दोनों मछली से हजरात मोहतरम 2 हीरे निकले, 2 हीरे, 2 मोती निकले। अल्लाह अकबर।
ऐसे हीरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों के बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी दौलत नहीं कि उसको खरीद। बाजार में बेचने के लिए गए तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि उस हीरे को खरीद। अब वो बनिया की दुकान पर गए तो हो सकता है कि बनिया खरीद ले। बनिया के पास गए तो बनिया ने कह दिया इस मोती को खरीदने के हमारे पास इस्तिताअत नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। ये बात चलते चलते बादशाह वक्त तक जाकर पहुंची। बादशाह ने खबर भेज दिया किसके पास वो मोती है जरा उसको बुलाओ। अल्लाह अकबर, उस शख्स को बुलाया गया। बादशाह बगैर देखे हुए उस मोती की कीमत 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। कितने गधे पर? 30 गधे पर सोने चांदी भरकर दे दी। अब वो घर आए, देखिए अल्लाह की कुदरत, देखिए माँ बाप की खिदमत। जो लोग कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करके क्या मिला, देखिए सिला। 30 गधे पर बादशाह खुद ब खुद सोने चांदी लाद कर दे दिया। अब तो घर आए, फिर दिल में आया कि इस मोती को भी रखिए, क्या करूंगा, इसको भी बेच दूं। फिर वो गए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा क्या कीमत लोगे? कहा बादशाह सलामत सुनो, उस दिन आपकी मर्जी के मुताबिक कीमत तय हुई थी, आज मेरे मुताबिक होगी। क्या मांगते हो? आज दुगनी देना पड़ेगी, दुगनी। अल्लाह अकबर, वो शख्स वो मोती बादशाह को देते और बादशाह उस मोती की कीमत 60 गधों पर सोने चांदी के अंबार भर कर दिए। अल्लाह अकबर, माँ बाप का सिला। देखा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस जरिए से उस शख्स को दिया। वो दोनों बेटे गरीब हो गए और उस वक्त उस शहर में वही शख्स सबसे बड़े मालदार हुए जो माँ बाप की खिदमत गुजार, जो माँ बाप के गुजार थे। पता चला कि माँ बाप की खिदमत में क्यों कहा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा, क्यों कहा? अब सुनो मेरे पीरो मुर्शिद, क्योंकि मुख्तसर टाइम है, तफसीली गुफ्तगू नहीं होगी। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सनदी मुर्शिद हज़रत शाह अख्तर रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वा की एक करामात समाअत फरमा लीजिए कि हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा हर मुरीदों के दिल में रहते हैं। क्या मोती साहब? हर मुरीदों के दिलों में रहते हैं। आप लोग कहेंगे वो कैसे? तो देखिए हुजूर ताज शरिया जहाँ पर भी मुरीद कराते थे तो लाखों का मजमा होता है, सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे वहाँ जाते रहते थे, हमको मालूम है। तो लाखों का मजमा होता था तो हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा रुमाल के जरिए मुरीद कराता था। तो एक मरतबा पाकिस्तान के सरजमीन पर हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा पहुंचे। एक शख्स हुजूर ताज शरिया से मुरीद हुए। वैसे तो लाखों मुरीद हुए, लेकिन एक ऐसे शख्स मुरीद हुए तो उनका एक दोस्त था जो आलिम, उसका दोस्त था जो आलिम। तो आलिम साहब से जब उनसे बातचीत हुई तो कहने लगे वो आलिम, कह रहे भाई ऐसे शख्स से मुरीद हुए हो कि वो तो रुमाल से मुरीद कराते हैं और सुनने में आया है कि उनकी आंख की रोशनी भी चली गई है और उनसे तो कोई लोग बातचीत भी नहीं कर पाते, उनसे तो लोग बातचीत भी नहीं कर पाते। ऐसे शख्स के पास मुरीद हो गए हो। अरे ऐसे शख्स के पास मुरीद हो जो आमने सामने हो, तुम अपने दिल की बात उनके सामने रख सकते। अब मुरीद भी ऐसे थे भाई कि रात ही रात में उसकी नियत बदल, रात ही रात में नियत बदलने लगी। मेरे आलिम दोस्त ने सही कहा है कि ऐसे शख्स से मुरीद होनी चाहिए जिसे हम अपने दिल की बात बयान कर सकें। और ये हुजूर ताज शरिया तो पता नहीं कहाँ रहते हैं और इनसे तो लाखों के मजमे में इनसे कब मुलाकात होगी, कब हम अपने दिल की बात बयान करें। अब इस ख्याल में वो सो गए, नींद आ नहीं रही। कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया तो देखो अल्लाह के वली का मकाम, अल्लाह के वली का पावर, हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा उस बंदे के ख्वाब में आ गए। आकर अर्ज करते हैं, हे मेरे बंदी, तू यही सोच रहा है, तेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ऐसे शख्स के पास मुरीद हो गया हूँ जिसे कभी बातचीत नहीं हो सकती। सुन ले, और तू ये भी सोचता है कि वो मुझे पहचानेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ तू किस जगह पर बैठा था। आओ सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा उस बंदे के पास हाजिर होकर ख्वाब में बयान करते हैं, देख तेरे दाएं तरफ ये शख्स था, तेरे बाएं तरफ ये शख्स था, तेरे आगे ये शख्स था, तेरे पीछे ये शख्स था, तेरा एक हाथ ऊपर को था, तेरा एक हाथ नीचे को था, तू फला जगह पर बैठा था।
تاج الشریعہ بیان فرماتے اور عرض کرتے ہیں تیرے دل میں یہ خیال بھی رہ کر ستا رہا ہے کہ میں اس سے کیسے بات چیت کروں، تو سنو، جب بھی مجھ سے بات کرنے کو تیرا دل چاہے تو لو یہ میرے اسجد کا نمبر لے لو۔ حضرات محترم، ابھی اسجد کا، ابھی حضور اسجد رضا کا نمبر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دینا ہی چاہ رہے تھے کہ اذان کی آواز آئی، وہ شخص خواب سے بیدار ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس شخص کے گھر میں، اس شخص کے گھر کے پاس پاکستان کا ایک انجینئر حضرات محترم دستخط دی اور عرض کرتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ تو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے، تجھے نمبر کی ضرورت ہے تاکہ حضور تاج الشریعہ سے بات چیت ہو جائے۔ لو، میں حضور اسجد رضا کا نمبر لے کر آیا ہوں، یہ نمبر لے لو۔ اللہ اکبر! اب وہ شخص پریشان، حضور اسجد رضا کا نمبر کہیں اس کو ملا، فوراً پاکستان سے ویزا نکالے اور بریلی شریف کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دربار اقدس میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور جب سب کچھ بتا دیے تھے تو نمبر بھی دے دیتے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مسکرا کر جواب دیتے ہیں، اے میرے مرید، جلدی مجھے نہیں تھی اس لیے کہ جلدی تو تجھے تھی اس لیے کہ انجینئر تیرے دروازے پر نمبر لے کر آ چکا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور بدر ملت، نعرے تکبیر، خطیب ملت۔ اچھا، ہمارے استاذ العلماء فقہا پیر طریقت رحمت الشریف حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان کی ایک کرامت سننا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت رضوان ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، بے شک، کیونکہ ایک اللہ کے ولی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، وہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ اولیاء کرام کلہ محفوظ کا علم، کلہ صغیر و کبیر مستطیر، اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم لکھا ہوا۔ تو جب اولیاء کرام کی نگاہ میں لوح محفوظ کا علم ہو تو کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ تو میرے دوست بزرگ، ہم سب عاشق حضور بدر ملت ہے کہ نہیں؟ سب حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے عاشق ہے۔ کاش آج اگر یہ نظر کرم حضور رحیم بخش کی نہ ہوتی اور یہ گلاب کا پھول، یہ تحفہ وہ یہاں نہ دے کر جاتے تو نہ جانے آج ہمارا ایمان کہاں ڈگمگاتا کسی کو پتہ نہیں۔ حضور رحیم بخش کا کرم ہے، حضور رحیم بخش کا کرم ہے کہ اس نے اپنے داماد کو لا کر ہمارے یہ اتنے اچھے ہیرے لا کر ہمیں دے دیے، لیکن ہم پہچانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کا گھر ہم جانتے ہیں، ہم پڑھے ہیں، سامنے گھر تھا، اس کے سامنے ایک حوض تھا اور اس کے اوپر پورا بانس کی جھاڑی تھی، سب کو معلوم ہے۔ اور پانا بھائی کا نام سنے، پانا بھائی کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں۔ پانا بھائی حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ کے پاس رہا کرتے۔ ایک دن حضور اللہ کے ولی راتوں کو بھی اٹھ کر قبرستان جایا۔ ایک دن حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ بہت رات ہوئی، آدھی رات گزر گئی، اٹھے اور قبرستان آنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اتنے میں پانا بھائی بھی جب جاگ گئے تو حضور پیر طریقت رحمت الشریف مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ نے عرض کی، اے پانا، تم یہی سو جانا، ادھر ادھر مت جانا، تم یہی سو جانا، ادھر ادھر مت جانا۔ اب تو اکیلا ہے، اب روم میں ہے تو بھائی عجیب سا تو لگے گا کہ پیر صاحب اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں، اتنی رات میں جاگ کہاں رہے ہیں۔ اب وہ پریشان، اور حضور نے کہہ دیا کہ پانا کہیں مت جانا، یہی رہنا۔ اللہ اکبر! حضور مفتی بدر الدین علیہ رحمت اللہ گھر سے نکلے
इधर उधर नहीं गए, सीधा कब्रिस्तान पहुंचे। कहाँ गए? ये सामने कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। और पाना भाई भी पीछे पीछे आने लगे, बहुत दूर पीछे पीछे आने लगे। तो क्या देखते हो दूर से ही कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे सब मुर्दे सफेद कपड़ा पहन कर खड़े हो गए और हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह एक दूसरे से मुसाफा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह वापस लौटने लगे, पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए। पाना भाई उससे पहले जाकर सो गए। उसको ये ख्याल था कि शायद पीर साहब मुझे देख ना ले, वरना फिर डांटेंगे, पहले जाके सो गए। अब हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह तो देखे नहीं थे, बाद में गए, वो तो पहले चले गए। जब रूम में पहुंचे, अल्लाह के वली का मुकाम देखो कि अल्लाह के वली दिल की बातों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह जब के पाना को देखे नहीं थे, डायरेक्ट ये अर्ज करते हैं, ऐ पाना, मैंने तुझे कहा था कि वहां मत जाना, कहीं मत जाना, मगर तू क्यों गया था? अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, ये क्या गवाही देता, ये बात किस चीज की गवाही देती है कि अल्लाह के वली का मुकाम ही यही है कि अल्लाह के वली को कोई बताए या ना बताए, मगर उसके दिल की हालत से अल्लाह के वली वाकिफ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करामत हुजूर बद्र मिल्लत, करामत हुजूर बद्र मिल्लत। नारे तकबीर। तो पता चला मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर बदरुद्दीन अली रहमतुल्लाह हमको देख रहे थे। अच्छा, एक और प्यारा वाकया, उसके बाद जाऊंगा मैं हज़रत फातिमा, फिर खत्म करें। एक अल्लाह के वली एक सड़क के किनारे बैठे हुए थे, दाढ़ी धूल से सनी हुई थी, चेहरे के बाल बिखरे हुए थे, बटनों की जगह बबूल के कांटे लगे हुए थे, बबूल के कांटे लगे हुए थे। एक औरत दही बेचती हुई जा रही थी कि दही ले लो, दही ले लो। अब वो औरत उस अल्लाह के वली के करीब से जब गुजरने लगी तो अल्लाह के वली ने उसको आवाज दी, क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो औरत सामने आई तो ये देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, ओ फटीचर आदमी, तो क्या दही खरीदेगा? ओ फटीचर आदमी, तो क्या दही खरीदेगा? तेरे तो कपड़े भी सही नहीं है। क्या रख तो सही, रख तो सही। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। वो औरत अर्ज करती है, तो क्या देगा? अल्लाह के वली अर्ज करते हैं, तुझे क्या चाहिए? वो औरत अर्ज करती है, सोने को सिक्का ना हो तो पैसा ही दे दीजिए। बेशक बेशक। सोने का सिक्का ना हो तो पैसे ही दे दीजिए। वो अल्लाह के वली का मकाम देखो। वो अल्लाह के वली रान में हाथ मारते हैं, सोने का सिक्का निकाल कर उस औरत के हाथ में थमा दिए। अब वो औरत बैठी, अब अल्लाह के वली के तेवर बदल गए। अब वो अल्लाह के वली कहने लगे, मुझे तुम्हारी दही नहीं चाहिए, अब तुम लेके जाओ। अब वो औरत दिल ही दिल में कहने लगी, बाबा अब दे लो या ना लो, मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे तो पैसा चाहिए। अल्लाह अल्लाह वो दिल ही दिल में बोला, मगर अल्लाह के वली दिल की बात को समझ गए। उस अल्लाह के वली ने फिर रान में हाथ मारे, पैसे भी दे दिए, रान में हाथ मारे, पैसे भी दे दिए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों। अब अल्लाह के वली अर्ज करते हैं, ओ माई जाओ, हर दिन
दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना, हर दिन दही दे करके जाना, सोने का सिक्का ले करके जाना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। अब वो औरत तो जाने लगी, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों बहुत खुश हो गए कि पैसे का मिशन हाथ आ गया है। आप लोगों के दिलों में भी आया होगा कि हो सकता है कि कोई बाबा हमें भी ऐसे मिल जाए जो हमारे मुकद्दर को सवार दे। हज़रात मोहतरम, अरे बाबा की बात छोड़ो, अरे हमें तो ऐसे हस्ती मिले हैं जो खुद सोने चांदी हीरे जवाहरात जिनके पास सब कुछ मौजूद है, पर लेने का ढंग चाहिए उस अंधे की तरह नहीं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक अंधा जाकर 3 साल से अर्ज करते थे, ए अल्लाह के वली मुझे आंखें दे दो, ए अल्लाह के वली मुझे आंखें दे दो, मगर आंखें नहीं मिली। जब 3 साल गुजर गए, आंखें नहीं मिली, तो वो अंधा अर्ज करने लगे कि अल्लाह के वली ये मिट्टी का ढेर कुछ नहीं देने वाला है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। और इनसे वहां पहुंच जाते हैं और अर्ज करते हैं, उस अंधे के हाथ में छुरी देते हैं, तलवार देते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अंधे बता ये तलवार है या क्या है? वो अंधे अर्ज करते हैं, हाँ हाँ ये तलवार है। क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? कहा नहीं जानता। कहा मैं औरंगजेब हूँ, औरंगजेब। औरंगजेब का नाम सब कोई जानते थे। अगर तूने अभी दुआ मांग, अगर तुझे आंखें नहीं मिली, मैं अंदर जाता हूँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार अक़दस के पास दुआ मांगने के लिए। इतने देर में अगर तुझे आंखें मिल गई तो सही है, वरना इसी तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि औरंगजेब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार अक़दस से दुआ मांग कर बाहर आए और उस अंधे से अर्ज करते हैं, अरे अंधे जरा बता क्या तुझे आंखें मिल गई? वो अंधे अर्ज करते हैं, हाँ हाँ अब मुझे आंखें मिल गई। बेशक, सुभान अल्लाह। अब मुझे आंखें मिल गई। औरंगजेब ने क्या अच्छा जुमला बोला है, अरे अंधे तू तो 3 साल से मांग रहा था, फिर तुझे क्यों ना मिली और अभी 2 मिनट में क्यों मिली? तो पता चला, मालूम हुआ कि वो अंधा जब दुआ मांगते थे कभी हाथ खुजला रहा था, जब दुआ मांगते थे कभी सर खुजला रहा था, जब दुआ मांगते थे कभी पैर खुजला रहा था। और जब उसने दिल से मांगी तो अल्लाह के वली को राम आया कि 3 साल मांगने के बाद जब उसकी आंख ना मिली, अभी 2 सेकंड भी ना गुजरी कि अल्लाह के वली ने उसे आंख की रोशनी वापस। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए। हमारे पास हीरे जवाहरात सोने चांदी बनाने वाले मौजूद है, लेकिन हमें मांगने का ढंग नहीं है, मांगने का तरीका जाएंगे इधर तो जोड़ेगा ना जिंदगी मस्जिद जाने सजदा खुरबी नहीं पड़ा। तो टाइम बहुत कम है, बस सिर्फ आखिरी ये मुफ्ती साहब हमारे पास बैठे, वो वाकया में पूरा बयान किया नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह देखा जाएगा। वो औरत के पास बहुत पैसे के आर पार हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो बयान करूंगा तो टाइम लेगा। तो मुख्तसर में सुन लीजिए कि मुफ्ती साहब, अगर आज आप लोग इनके साथ अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं देंगे, हाँ, और ये यहाँ छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारे पास सोने चांदी बनाने वाले मौजूद हैं, लेकिन हमें मांगने का ढंग नहीं है। मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर मुफ्ती बदरुद्दीन अलवी रहमत व रिज़वान की बारगाह में आपकी सुनी जाए या ना जाए, हमारी सुनी जाए या ना जाए, लेकिन अगर पोते हज़रात मोहतरम दादा की बारगाह में दिल बिछाकर दुआएं कर देंगे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दादा की बारगाह में पोते की कभी रद्द नहीं होती। क्या मुफ्ती साहब, दादा की बारगाह में पोते की कभी रद्द नहीं होती। मैं एक वाकया बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में 1 रुपये खर्चा करोगे तो 10 रुपये मिलेगा। आज हमारे इलाके में बहुत तनख्वाह है, बहुत मदरसा है, लेकिन तनख्वाह किसी को नहीं मिलती। इतने बड़े गाँव में अगर 100 रुपये देगा तो हजरत को कम से कम 15,000 रुपये मिलेगा। ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ाते हैं, 500,000 रुपए। इतने बड़े गांव में अगर 50-50 रुपए करके देते तो कम से कम 10,000। और आज अगर ये खुश हो गए तो हुजूर मुफ्ती बदरे मिल्लत की बारगाह में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको खुश करेंगे, वो वहां से खुश हो जाएंगे, आपकी झोली भरती जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झोली भरती जाएगी। आओ प्यारा
उलमा का मकाम बयान करूंगा तो रात गुजर जाएगी। सरकार फरमाते वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं। सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। सरकार फरमाते हैं मन जरा आलिमन फकान्नमा जरानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। अरे बड़े बड़े लीडरों, आमिरों, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मिंबर, मुखिया, सरपंच के लिए कुर्सी को छोड़ दे तो मुसाफा करते हो इसलिए कि चाय मिलेगी। उलमा से कौन मुसाफा करे? तो चाय पिलाने वाले नहीं है। उलमा से कौन मुसाफा करे? लेकिन सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में अर्ज करता हूं, अगर आप लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हो कि काश खर्चे शायरी हयात में नहीं है लेकिन उलमा का मकाम किस अंदाज में बयान फरमाए। सरकार फरमाते ओ मेरे उम्मतियों, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे गुलामों, अगर तुम मुझसे मुसाफा करना चाहते हो तो सुनो, मन सफा आलिमन फकान्नमा सफानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा की उसने गोया कि मुझसे मुसाफा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिसने किसी आलिम से मुसाफा की गोया कि उसने मुझसे मुसाफा की। उलमा से लोग जलते हैं, उलमा से लोग जलते हैं। सुनो प्यारा वाकया, हजरत अली भूखे हैं, हजरत फातिमा भूखी है, 3 दिन से हंडी नहीं चली, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, एक चादर थी जिस पर हसनैन करीमन सो रहे थे। हजरत फातिमा ने अर्ज की इस चादर को ले जाओ, मेरे शौहर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बेच कर जाओ। हजरत अली बाजार गए, चादर की कीमत हुई 6 रुपए। लेकिन सरकार के हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं क्या अली खुद खाने से पहले गरीबों को देख लिया? कोई देखते हैं? कोई नहीं देखते। सरकार का फरमान है कि खुद खाने से पहले गरीबों, फकीरों, मिस्किनों, यतीमों को देख लिया। अब हजरत अली स्पीड में मैं बता रहा हूँ, हजरत अली 6 रुपए में चादर बेचने के बाद जब आने लगे तो रास्ते में इतने भूखे मिले कि हजरत अली तो खुद 3 दिन के भूखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भूखे मिले कि हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि मुझसे ज्यादा शायद ये लोग भूखे हैं। और सरकार ने फरमाया कि अली खुद खाने से पहले गरीबों को देखभाल कर, गरीबों को देख लिया। अब हजरत अली आने के टाइम पूरे 6 रुपए गरीबों में दे दिए, पूरे 6 रुपए गरीबों में तकसीम कर दिए। अब शहर की तरफ लौटे तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगा, हुजूर की प्यारी बेटी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत, एक हसीन जमील खूबसूरत नौजवान शख्स नमोदार और उसके पास एक ओटनी, उसके पास एक ओटनी। कहा अली इस ओटनी को खरीदोगे? तो हजरत अली ने अर्ज किया इस ओटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे ही कहाँ है, इस ऊँटनी को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है? का एक काम करो, तिजारत हो जाए, उधार ले लो, जो नफा होगा वो आप ले लेना। तो 100 रुपए तय हो। कितना? 100 रुपए तय हुआ। हजरत अली ने उस ऊँट को 100 रुपए में खरीद लिया। अब बाजार बेचने के लिए तो फिर एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान नमोदार हुआ और अर्ज करने लगे ए अली क्या इस ऊँटनी को बेचोगे? तो हजरत अली ने कहा मैं तो खरीदा हूँ बेचने के लिए, खरीदा हूँ बेचने के लिए। का क्या कीमत क्या लोगे? तो आज की तिजारत वालों की तरह नहीं, आज की ताजिर की तरह नहीं कि 700 रुपए लेगा और 1000 दाम रखेगा और कहेगा भाई साहब तो हमारा करीबी है, रिश्तेदार है, इसको मैंने 1000 रुपए खरीदा, आप सिर्फ 100 टका बढ़ा दीजिए। ऐसा तिजारत नहीं। हजरत अली ने क्या कहा कि मैंने 100 रुपए खरीदा हूँ, मुनाफा देने का इख्तियार आपको, मुनाफा देने का इख्तियार आपको है। अब वो हसीन और जमील शख्स 160 रुपए निकाल कर दे दिए, 160 रुपए निकाल करके दे दिए। ये बारगाह में 1 रुपए खर्चा करोगे तो 10 रुपए मिलेगा। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली आए तो रास्ते में जिस ऊँट खरीद लिए थे वो हसीन और जमील शख्स मिल गए। हजरत अली ने उसके 100 रुपए उसको दे दिए। तो कितने बचे? कितने बचे भाई? 60 रुपए। अब 60 रुपए लेकर हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचते हैं और 60 रुपए वो हजरत अली अपनी बीवी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में देते हैं। आज की औरतों की तरह से नहीं। अच्छा कोई ऐसी औरत है कि ये पूछे कि मेरे शौहर ये पैसे जो कमा करके लाए हो हलाल लाए हो या हराम लाए हो? अल्लाह सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत फातिमा अर्ज करती है मेरे
शोहर में इस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे चादर की कीमत इतनी नहीं हो सकती आप जितने रकम ला कर दिए। देखिए तकवा, देखिए हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। हजरात मोहतरम तब जाकर, है मेरी प्यारी बीवी, हुजूर की प्यारी बेटी, असल में हमारी चादर की कीमत 6 रुपए हुई थी, हमारी चादर की कीमत 6 रुपए हुई थी। लेकिन सरकार की हदीस मुझे याद आ गई कि अली खुद खाने से पहले गरीबों को खिला दिया करो, तो मैंने पूरे 6 रुपए रास्ते में तकसीम कर दिया। तो फिर मैं घर आ रहा था, सोचते सोचते तो एक नमूदार शख्स मेरे पास जाहिर हुआ, उसके पास एक ऊँटनी थी, उसने कहा ऊँट को खरीद लो। तो मैंने कहा मेरे पास तो खरीदने के पैसे नहीं है। तो उसने कहा जो एक तिजारत कर लेते हैं, जो मुनाफा होगा वो आपका होगा। तो 100 रुपये मैंने उस ऊँटनी को खरीदा, बाजार ले गया तो 160 रुपये उसको मैंने बेचा, 160 रुपये मैंने उस ऊँटनी को बेचा। अब मैंने 100 रुपये आते समय उस नौजवान को दे दिया, 60 रुपये लेकर के मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर, इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जरा ये तो बता दे कि वो ऊँटनी कहाँ की थी, वो शख्स कौन थे। तो हजरत मोहतरम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, गैब का खबर आप ही को है, गैब की बात आप ही जानते हैं, आप ही बता दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जो ऊँटनी बेचे थे वो कोई और नहीं बल्कि जिब्रील अमीन थे, और जो ऊँटनी को खरीदे हैं वो मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। और ये ऊँटनी दुनिया की ऊँटनी नहीं बल्कि ये जन्नतुल फिरदौस की ये ऊँटनी है जिस पर तू सवार होकर जन्नत में जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत ने बहुत उम्दा खिताबत फरमाई। अब